Hello, Assalamu alaikum students. I hope you are doing good. Previously, we were studying about all those three loops, and we have done for loop. We also have done repeat until, and while loop is also done. तो हमने तीनों loops को study किया था. Then yesterday we did some questions जिसमें हमने multiple loops को एक साथ use किया था. So I hope now you have some good grip on those three loops. Still, if you're facing any sort of difficulty, you have to let me know. Otherwise, you also have to see the recorded lessons ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लूप्स किस तरह से वर्क करेंगी. Why? Because अगर किसी भी लूप में आपको किसी तरह का भी डाउट है then you will not be able to do some of the questions जो अभी हम इसके बाद करेंगे. ओके राइट. तो अभी हमने ये देखना है कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरेज. ओके. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. यू जस्ट हैव टू टेल मी. फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टोर 10 names of 10 students. How many variables I have to take? I want to store names of 10 students. How many variables I have to declare? This is my question from you, everyone. You just have to tell me. I want to store, I'm repeating it, I want to store names of 10 students. How many variables I have to take? 10 names store करने. Okay, so Musa is saying I have to take 11 variables. Okay, nice. According to me, I have to take 10 different variables like first name, second name, third name, or first student name, second student name, third student name, fourth student name, and so on to 10th student name. I have to take 10 variables for that. And it is, a difficult task to declare 10 variables for that. Okay, now my question is I want to store 1000 names and how many variables I have to take for that. I want to store 1000 names. And it is a possible thing while creating a software कि आपको 1000 जो है वो नेम स्टोर करने पड़े हैं. तो बताएं क्या इसके लिए कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लेंगे. आई हैव टू टेक 1000 वेरिएबल्स फॉर दैट. या अगर हम काउंट नहीं यूज करेंगे तो आप कहेंगे, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आप कहेंगे कि सर हम कोई और सब्जेक्ट रख लेते हैं क्योंकि ये 1000 वेरिएबल्स वाला सीन तो हमसे नहीं हो रहा. तो देन वी हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूसिंग एरेज. तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एरेज को करने जा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू यूज एरेज. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एरेज की डेफिनेशन अपने पास लिखनी है बिकॉज ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है. सो टॉपिक हमारा आज एरेज है. राइट. सो दिस इज माय टॉपिक एंड आई जस्ट वांट टू डिफाइन एरेज. So the very first thing is the definition. अब हमने ये कहा that we want to store multiple data. We want to store 1000 name. We want to store 1000 marks. We want to store 1000 marks or things like this. So for that I have to use arrays. So that definition will be this array is a group of consecutive memory locations. So it's consecutive memory locations used to store data of same data type. So, for example, I want to store 1000 names, I'll declare an array. I want to store marks of 1000 students, I'll declare another array. I want to store school name of 1000 students, I'll declare my third array. So, basically, there are two types of arrays. दोनों types को हमने study करना है. जो आपके कोर्स में discuss हुई हैं, I am just talking about those. तो अगर हम types की बात करें, so there are two types of arrays. The one is
one dimensional array. The very first one is one dimensional array and the second one is two dimensional array. जो आपके पास one dimensional array है उसको हम 1D array कहते हैं, and then there is two dimensional array and इसको हम 2D array कहते हैं. So this is my two dimensional array and it's a 2D array. ओके, अब हमने ये देखना है कि हम इन एरेज को यूज कैसे करें. एंड आपको मैंने ये कहा था दैट यू शुड नो अबाउट लूप्स, और हम एरेज के साथ यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर लूप को. तो फॉर लूप आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छी आनी चाहिए. इफ यू आर वेरी गुड एट इट देन यू हैव टू लर्न दीज एरेज. ठीक है, तो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ एरेज, and there are two types of arrays, 1D and 2D. So we'll start from 1D arrays. मैंने आपको ये कहा था we want to store 10 names, so I have to take 10 variables for that, and we don't want to take 10 variables. I'll just use a single 1D array and I'll store all my data in it. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से होगा. So my heading is declaration of an array. Declaration of array. So जैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसे आपको एरेज को भी डिक्लेयर करना पड़ता है. तो इसको मैं लिख देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ वन डी एरे. इट्स अ वन डायमेंशनल एरे. और कैसे डिक्लेयर करेंगे, आई हैव टू सी दैट. आई वांट टू स्टोर 10 नेम्स, और जब मुझे 10 नेम स्टोर करने हैं तो आई हैव टू डिक्लेयर एन एरे फॉर दैट. जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, ऐसे ही एरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे. सो माय क्वेश्चन इज सूडो कोड, or my statement is pseudocode to declare an array for storing 10 names. 10 names. और अभी हम इसको सिंपल रखते हैं तो 5 names. अभी सो फॉर जस्ट मैं डिक्लेयर करूंगा. आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यू यूज अ कीवर्ड फॉर दैट. सो आई आल्सो हैव टू यूज द कीवर्ड एंड दैट इज डिक्लेयर. ठीक है, आई वांट टू स्टोर नेम्स. तो मेरी एरे का नाम यहाँ पर क्या होगा, नेम्स होगा. आपने वही रूल्स फॉलो करने हैं जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए रूल्स फॉलो करते थे. वही फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, नो स्पेसेस, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. तो वो सारे रूल्स आपने फॉलो करने हैं. आई वांट टू स्टोर 5 नेम्स. तो 5 नेम्स लेने हैं ना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आपने रेंज बतानी है. So my range is 1 colon 5, where 1 is the lower bound and 5 is the upper bound. This means कि आपके names 1 से 5 तक जाएंगे, means total 5 होंगे. Then you also have to write that what type of data it is storing. So basically names strings में होते हैं, so I'll write array of strings. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर array of strings लिखना है. So this is how I'll declare an array. Okay guys, any issue in this thing? अब जब आप ये लाइन लिखोगे ना, तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक ऐसे ब्लॉक बन जाएगा. कैसा ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा जिसमें टोटल 5 चंक्स होंगे. कुछ इस तरह का ब्लॉक बनेगा जिसमें देयर विल बी 5 डिफरेंट चंक्स. और ये ब्लॉक किस, इसका नाम क्या होगा, इस ब्लॉक का, इसका नाम होगा नेम्स. क्यों? क्योंकि आपने इसका नाम नेम्स रखा है. तो इस ब्लॉक का नाम नेम्स होगा, एंड ऑटोमेटिकली वो इसको डिफरेंट नंबर्स असाइन कर देगा. जैसे 1, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1 है, सेकंड ब्लॉक का 2 है, देन 3, देन 4 एंड देन 5. आई होप यू गॉट दिस थिंग. मींस कि मैंने सिर्फ ये लाइन लिखी तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना जिसका नाम नेम्स है, एंड देयर आर 5 चंक्स इन इट. इज इट क्लियर गाइस, एवरीवन? एनी क्वेश्चन इन दिस थिंग? ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आपने बस मुझे ना ये एक लाइन लिख के देनी है. जैसे मैंने डिक्लेयर नेम्स 1 कॉलन 5 कॉलन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स लिखा है. यू जस्ट हैव टू राइट द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, एंड दैट विल बी एरे ऑफ
array for storing 5 marks। आप मुझे इसकी एरे डिक्लेयर करके दें। एंड यू हैव टू यूज दैट वर्ड डॉक्यूमेंट, इफ यू डोंट हैव द एक्सेस टू दैट डॉक्यूमेंट, आपने उसके फर्स्ट ब्लॉक में ही ना इसको लिखना है, बट इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट तो फिर आप चैट में मुझे लिख के भेज दें। And try your level best to take class on laptops or computers instead of doing it on cell phones, because cell phone की screen ही already इतनी छोटी होती है, how you are able to understand the things. Okay guys, so you just have to declare an array for storing 5 names, means कि आपने इस तरह की एक लाइन मुझे लिख के देनी है, क्योंकि ये लाइन तो इस पर्पस के लिए थी। इसके लिए क्या होगी? This question is very very important. Why? Because it is 100% sure कि ये पेपर एरेज का सॉरी एरेज का टॉपिक पेपर के अंदर आता है। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। यू विल इवन सी द लास्ट 3 4 years पेपर, आपको सारों में क्वेश्चन नजर आएगा। इसमें आपसे वो 1D वो इन द फॉर्म ऑफ एरर करेक्शन भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ 15 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। ओके मरियम, वेल डन। देन देयर इज मूसा, गुड जॉब। ओके, तो मुझे इन्होंने लिख कर दिया है। देन और किसने लिखा है? मरियम, मूसा, अली ने लिख के दिया है, वेल डन। एंड रयान, गुड। ओके, these students are very consistent with the correct answers. Okay, so they just have written it कि आपने इसको लिखना है डिक्लेयर। एंड इन्होंने एरे का नाम लिया, एंड एरे का नाम इन्होंने मार्क्स असाइन कर दिया। It's 1:5 or array of integers. So this is how you will declare an array. तो अभी तो हमने जस्ट डिक्लेयर किया है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे हाउ टू स्टोर डाटा इनसाइड इट। ठीक है, तो चलें जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब प्रॉपर एक सूडो कोड करते हैं, किसके साथ? एरेज के साथ। तो द क्वेश्चन इज, राइट ए सूडो कोड to declare an array named as student names and store 5 names in it, or for example 6 names in it. 6 names in it. So this is my question. So how I'll do that? I first have to declare an array. I have to use for loop for that. I'll take the input from the user and I'll store it in that array. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ये बताया था कि आपको डिक्लेयर करना है एरे को। तो इन्होंने हमें खुद बताया था कि आपने एरे का नाम क्या रखना है? स्टूडेंट नेम्स। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू राइट स्टूडेंट names. I'll place a bracket there, 1:6. Why? Because I just want to store 6 names in it. And what is it? This is an array of strings. तो मुझे बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन कि हाउ वी हैव टू डिक्लेयर एन एरे? अगर तो है तो फिर हम पहले उसके ऊपर ही वर्क करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सो दिस इज हाउ आई हैव टू डिक्लेयर एन एरे। आप जो ही ये लाइन लिखते जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा इस तरह का। एंड इसके अंदर 5 चंक्स होंगे कुछ इस तरह से। एंड इस ब्लॉक का नाम, ये ब्लॉक आपने नहीं बनाना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। इस ब्लॉक का नाम स्टूडेंट नेम्स होगा, और वो ऑटोमेटिकली इसको मल्टीपल नंबर्स असाइन कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये एवरी टाइम 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आई वांट टू स्टोर नेम्स इनसाइड इट। अब जब हम इसमें यूज कर रहे हैं फॉर लूप, सो वी हैव टू डिक्लेयर काउंट फॉर दैट। यू कैन डिक्लेयर काउंट, यू कैन डिक्लेयर इंडेक्स, आपकी मर्जी है।
तो मैं यहाँ पर काउंट लिख रहा हूँ और इसकी डाटा टाइप मैं दे रहा हूँ इंटीजर। द पॉइंट इज व्हाई आई हैव टू यूज दिस काउंट, क्योंकि काउंट में वन होगा तो डाटा यहाँ स्टोर होगा, काउंट में टू होगा तो डाटा यहाँ स्टोर होगा, काउंट में थ्री होगा तो डाटा यहाँ स्टोर होगा, फोर होगा तो डाटा यहाँ स्टोर होगा, और फाइव होगा तो डाटा यहाँ स्टोर होगा। नाउ आई हैव टू सी कि हम इसके अंदर जो है वो डाटा को स्टोर कैसे करें। दैट इज द मेन पॉइंट। अच्छा, तो डाटा को स्टोर करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मुझे लूप यूज करनी है, एंड दैट इज फॉर लूप। अच्छा, अब देखें, वैसे एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर डाटा स्टोर करना चाहता हूँ ना, सो इट मीन्स कि मुझे अपनी एरे का नाम लिखना होता है, एंड ब्रैकेट में एड्रेस बताना होता है। मैंने सेकंड एड्रेस पे डाटा स्टोर करना था ना, सो इट मीन्स दिस थिंग इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस थिंग। अगर मैं इसको थ्री कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब है अब ये पॉइंट इस एरिया को कर रहा है। अगर मैं इसको फोर कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये एरिया पॉइंट कर रहा है इसको। अगर मैं इसको फाइव कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये चीज इसको पॉइंट आउट कर रही है, इस एरिया को। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग आपने समझनी है कि why it is pointing this area। ओके, अभी मैं यहाँ पर लूप रन करूंगा फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर फाइव टाइम्स, और फिर हम डाटा को स्टोर करेंगे। ओके, सो आई जस्ट राइट फॉर काउंट वन टू सिक्स, नॉट फाइव, सिक्स टाइम्स, बिकॉज हमने वन से सिक्स तक जाना है। Okay, I'll just inform the user that you just have to enter the name of the student. So my message is enter name of student. Double quotation closed, and then I'll write input. फिर मुझे अपनी एरे का नेम लेना है, और मेरी एरे का नेम स्टूडेंट नेम्स था, मेरी एरे का नेम ये था। ठीक है, आई जस्ट हैव टू राइट दैट थिंग देयर। लेकिन ये वन कॉलन सिक्स की जगह मैं अब क्या लिखूंगा, आई जस्ट राइट काउंट देयर, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वेयर्स के अंदर। वाई आगे बताता हूँ, पहले हम इस लूप को एंड कर लेते हैं, एंड दैट विल बी एंडेड विद नेक्स्ट। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, इसका मतलब था कि आपकी मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक बन जाए। ठीक है, और ये ब्लॉक क्या करेगा, आपके डाटा को स्टोर करेगा। सो दिस लाइन इज फॉर दैट रीजन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देन आई हैव डिक्लेयर्ड काउंट। व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड दैट, कि वो जो उन बॉक्सेस एड्रेस है ना, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, वो इसके अंदर आके स्टोर होगा। सो दैट्स व्हाई मैंने डिक्लेयर काउंट की डाटा टाइप इंटीजर रखी है। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट, माय लूप विल बी आइटरेटेड फॉर सिक्स टाइम्स। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेरी लूप चली है, तो काउंट के अंदर वैल्यू क्या है, वन है। अब आपने याद रखना है, काउंट के अंदर वैल्यू वन है। इट इज आस्किंग मी टू एंटर द नेम ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, और आपने कीबोर्ड से इनपुट किया मूसा, लेट्स से दिस इज माय नेम। अब ये मूसा कहाँ स्टोर होगा, मूसा इटसेल्फ तो नहीं स्टोर हो सकता, बट उसका नेम जरूर स्टोर होगा। सो व्हाट इट विल डू, इनपुट स्टूडेंट नेम्स। काउंट में क्या था, वन था। स्टूडेंट नेम्स काउंट में था वन, तो इसका मतलब आपका डाटा ये फर्स्ट चंक में आएगा, और मूसा का नेम स्टोर होगा इधर। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कौन नेक्स्ट हुआ, काउंट नेक्स्ट हुआ। काउंट वन से क्या हो गया, टू। We'll see either that 2 is in the range. Yes, it is in the range, which is from 1 to 6. Enter name of student. हमने स्टूडेंट का नेम इनपुट करना है। स्टूडेंट नेम्स इनटू काउंट, सो फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे निहान का नेम इनपुट हो रहा है, सो स्टूडेंट नेम्स इनटू टू मीन सेकंड एड्रेस पे निहान का नेम स्टोर हो जाएगा। देन काउंट की वैल्यू थ्री होगी, तो इसका मतलब स्टूडेंट नेम्स इनटू थ्री, थर्ड नेम यहाँ आ जाएगा, देन फोर्थ नेम यहाँ आ जाएगा, देन फिफ्थ नेम यहाँ आगे चला जाएगा। सो इट मींस वन आफ्टर द अदर ऐसे आके नेम स्टोर होते जाएंगे। ओके गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है तो मुझे बताएं। नो, द फर्स्ट पोजीशन इन सूडो कोड्स इज वन ऑलवेज। जीरो नहीं हम लेते, वन लेते हैं। जीरो से भी काम तो वो सेम करेगा, लेकिन सूडो कोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम वन से लेकर जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, एनी इशू इन दिस थिंग तो फिर मैं रिपीट दोबारा करूंगा, अदरवाइज आई मूव ऑन। ओके गाइस, तो देखें ना, अब हमने एक एरे ली है एंड वी आर स्टोरिंग 5 नेम्स देयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मुझे ये कहते हो कि सर आई जस्ट वांट टू प्रिंट वट एवर इज स्टोर्ड ऑन द फोर्थ एड्रेस बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज स्टोर्ड इन इट। तो आप जस्ट ये कहते हो कि मैंने फोर्थ एड्रेस पे प्रिंट करना है कि क्या स्टोर हुआ हुआ है। सो व्हाट विल यू डू? क्योंकि मैंने अभी ये कहा कि वी आर ओनली गोइंग टू सी दैट व्हाट इज देयर ऑन द फोर्थ एड्रेस। सो सिंपली मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिंट, एरे का नेम था स्टूडेंट नेम्स, and I just want to see what is there on the fourth address. So it will go there, it will see that the name of Mariam is stored over there, so it will print Mariam on the screen. For example, you want to see what is stored in address 1, so you'll simply write print student names into 1. So the name of Ali will be printed on screen. You want to see what is there on fifth address, you'll write print student names into 5. So Rayan is there, so Rayan will be printed on screen. Guys, is this thing clear? If you have any question, let me know. Why are names 5 and count till 6? हाँ, point is good कि आपने कहा कि हम तो names 5 स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉरी 6 स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 की एरे क्यों है? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, तो यहाँ पर 6 ही होना चाहिए। तो लेट्स से 6 पे मैंने उस्मान का नेम स्टोर कर दिया। So if I want to print whatever is on the sixth address, I'll simply write 5 की जगह 6। अब बताएं कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई भी इशू है, यू हैव टू लेट मी नो। एंड इट इज, यू नो, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट टू स्टोर नेम्स ओवर देयर। ओके, अब हमने अभी तो सिर्फ डाटा स्टोर किया, नाउ विल प्रोसेस डाटा। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल जस्ट स्टोर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विल आल्सो स्टोर देयर मार्क्स। Okay, for example, if I want to store names as well as marks, how many arrays I have to declare? I want to store names as well as marks of a student. So how many arrays I have to declare? Okay, I have to declare two arrays. Why I have to declare two arrays? Because जो names हैं वो तो आपके पास string में हैं, और जो marks हैं वो आपके पास integer में हैं. So for that reason I have to take two arrays. So what I am going to do, I am just going to write a pseudo code which will take 5 names of those students and also the marks of those students. तो देखते हैं कैसे work करेगा ये question. So my question here is, write a pseudocode to input names of 5 students and their marks also. Declare two 1D arrays. तो सबसे पहले तो मैं दो 1D arrays को डिक्लेयर करूंगा। हाउ आई डू दैट? आई जस्ट राइट डिक्लेयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स हैं, तो आई राइट नेम्स ब्रैकेट 1:5 and this is my array of strings. So this is array of strings. Now my next point is declare नेम्स के बाद क्या आ जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, सो आई राइट मार्क्स 1:5 and this is array of integers. So this is how I have to declare
टू वन डायमेंशनल एरेज। तो जब आप टू वन डायमेंशनल एरेज लेंगे, सो बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर टू ब्लॉक्स बन जाएंगे। और दोनों ब्लॉक्स का पर्पस क्या होगा? जस्ट टू स्टोर डाटा, राइट। सो जो आपके पास नेम्स का ब्लॉक होगा, दैट विल लुक लाइक दिस। इसके 5 मल्टीपल पार्ट्स होंगे, एंड द एड्रेसेस आर लाइक दिस: 1 2 3 4 5। एंड इसका नेम क्या है? नेम्स है। और नेक्स्ट जो आपके पास एरे बनेगी, तो फर्स्ट एरे का नाम था नेम्स, तो नेम्स का ब्लॉक बन जाएगा एक, और सेकंड बन जाएगा ब्लॉक मार्क्स का, एंड मार्क्स विल बी देयर। ठीक है, नाउ आई वांट टू स्टोर डाटा इनसाइड इट, एंड आई हैव टू सी कि वो डाटा किस तरह से स्टोर होता है। ओके, सो आई एम जस्ट ड्रैगिंग दिस डाउन, बिकॉज ये तो हमने जस्ट एक समझाने के लिए लिखा था। ओके, आई जस्ट वांट टू स्टोर नेम्स अलोंग विद मार्क्स। जैसे अगर सपोज करते हैं ना कि अगर मैंने यहाँ पर अली स्टोर किया है, तो अली के मार्क्स मार्क्स की एरे में जाएंगे। सपोज वो 50 मार्क्स थे। देन फॉर एग्जांपल उस्मान है अगर सेकंड एड्रेस पे, तो सेकंड एड्रेस पे उस्मान के ही मार्क्स हैं। देन थर्ड पे अगर नेहान है, तो थर्ड एड्रेस पे नेहान के ही मार्क्स हैं। फोर्थ पे सपोज बाकिर हैं, तो यहाँ पर बाकिर के ही मार्क्स हैं। यहाँ पर मरियम है फिफ्थ एड्रेस पे, तो फिफ्थ एड्रेस पे मरियम के ही मार्क्स हैं। राइट, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है। सो हम पैरेलल में नेम्स अलोंग विद मार्क्स स्टोर करेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस: माय लूप विल बी आइटरेटेड फॉर कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। सो आई राइट फॉर काउंट, तो काउंट लेना है तो डिक्लेयर भी तो करना है। सो आई जस्ट राइट डिक्लेयर काउंट, क्योंकि काउंट में 1 2 3 4 5 6 है। आप काउंट ले सकते हो, इंडेक्स ले सकते हो, आई ले सकते हो, एड्रेस ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि काउंट ही लो। और अगर पेपर में काउंट की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा, देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैव टू iterate the loop for 5 times। I'll write for count 1 2 5। ठीक है, देन देयर इज मैसेज। आप प्रिंट भी लिख सकते हो, आउटपुट भी लिख सकते हो, बात एक ही है। एंटर स्टूडेंट नेम, और हमने उसके लिए जो एरे का नाम लिया हुआ था, आपने वही एरे का नाम यहाँ पर भी लेना है। ठीक है, सो इट विल बी लाइक नेम्स, और मुझे यहाँ इनपुट लिखना है, इनपुट नेम्स, और एड्रेस कौन सा था? जो लूप के आइट्रेशन नंबर है। ठीक है, नाउ आई वांट टू स्टोर marks of that student, so I'll write enter his or her marks। जो जिसका भी नेम इनपुट किया उसी की मार्क्स की बात हो रही है। एंड I'll just write input, what is the name of that array marks था? ब्रैकेट count। then I'll just write next। अच्छा गाइस, अब आपने ये देखना है क्या होगा। काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1। सबसे पहले मैं अपनी एरे को क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू है 1। ठीक है, अब 1 याद रखना है, फर्स्ट टाइम एरे जा रही है। एंटर स्टूडेंट नेम, नेम्स इनटू 1, नेम्स इनटू 1, फर्स्ट एड्रेस पे डाटा जाएगा। और डाटा में हमारे पास है नेम ऑफ अ स्टूडेंट, लेट्स से दैट स्टूडेंट इज शहीर, तो शहीर का नेम यहाँ स्टोर हो गया। एंटर हिज और हर मार्क्स, मार्क्स इनटू 1 मीन्स यहाँ पर डाटा आएगा। और इन्होंने टॉप मार्क्स लिए हैं क्योंकि इनकी असाइनमेंट भी 100% होती हैं।
ओके नेक्स्ट। काउंट की वैल्यू वन थी, अब टू हो गई है। ठीक है। एंटर स्टूडेंट नेम, नेम्स इनटू टू। नाउ लेट्स से मरियम इज देयर। Okay, Mariam also got 50 marks. So enter his her marks, marks into 2, and again marks are 50. Okay, now there is a third student. क्योंकि काउंट की वैल्यू 3 है, so basically अब हम इसकी बात कर रहे हैं थर्ड एड्रेस की। And let's say name is Aryan, and he's not a good student, he just got 10. Why 10 is stored over there? क्योंकि marks into 3, marks into 3 पे जाएगा। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 3 से 4 हो गई। Enter student name, he is Ali. Enter his marks, marks into 4, and he got 49. Next, count की वैल्यू होगी 5. Enter student name, names into 5, and that student is Rayan. And enter his marks, and marks into 5 means he got 50. Next means count की value 6. It will go there. 6 is not in the range. It will take an exit. So this is how we declare arrays. ठीक है, तो my question, sorry, my answer is this thing. जो आपके पास स्क्रीन पे अभी विजिबल विंडो है, that is the pseudo code answer, जिसमें हम names along with marks स्टोर करेंगे। ओके गाइस, इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। आपने जो पहले फॉर लूप के साथ क्वेश्चन किए थे, नाउ वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एरेज इनसाइड इट। तो हम, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम वेरिएबल्स लेते थे तो वो उसके अंदर ही ओवरराइड कर रहा होता था वैल्यू। लेट से अगर हमने शहीर फर्स्ट टाइम स्टोर किया है, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो हमने मरियम स्टोर कर दिया, तो शहीर रिमूव हो जाएगा और उधर ही मरियम स्टोर हो जाएगा। देन आर्यन का नेम स्टोर करना है तो मरियम पे ओवरराइट हो जाएगा। अली स्टोर करने हैं, आर्यन पे ओवरराइट हो जाएगा। रेयान स्टोर करने हैं, अली पे ओवरराइट हो जाएगा। सो हियर वी आर नॉट ओवरराइटिंग द वैल्यूज, वी आर टेकिंग ऑल दोज वैल्यूज, वी आर स्टोरिंग इट, एंड व्हेन नीडेड विल प्रिंट दोज वैल्यूज। व्हेन नीडेड विल प्रिंट दोज वैल्यूज, तो वो आपको अभी आगे समझ आएगी कि when it those things are needed. So guys, is it clear? If you have any problem, let me know. Any issues regarding this? If you want me to explain it again, I can. Just let me know. Because this thing should be crystal clear. Otherwise, we all will face some difficulties answering some more questions. Okay, right. अच्छा, तो बस एक बार हम इसको जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। एंड दैट विल बी, the question is a pseudocode to input marks of 5 students and their marks, also उनका नेम भी स्टोर करेंगे, उनके मार्क्स भी स्टोर करेंगे, डिक्लेयर टू 1D arrays. सो अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन द ओवर रिटन थिंग। अच्छा, वो शहीर का क्वेश्चन है कि ओवर रिटन थिंग की आपने बात की वो क्या थी। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम पहले करते थे ना, तो हम लिखते थे फॉर काउंट 1 to 5, प्रिंट एंटर स्टूडेंट नेम इनपुट नेम्स, प्रिंट एंटर हिज हर मार्क्स इनपुट मार्क्स। तो हम ये वाला सिनेरियो नहीं यूज करते थे, एरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। तो अब देखो ना, पहले मैंने नेम्स के अंदर सपोज स्टोर किया, फर्स्ट टाइम शहीर स्टोर किया, राइट, वो शहीर स्टोर हुआ था, मार्क्स में 50 स्टोर हुआ था। जब नेक्स्ट टाइम लूप चली, काउंट की वैल्यू 2 हुई, और अब मैंने मरियम स्टोर किया है, तो वो देखो नेम्स की वेरिएबल में ही मरियम स्टोर हुआ है ना। सो इट मीन्स कि वो पिछला डाटा के ऊपर अगेन न्यू डाटा स्टोर करेगा। मीन्स कि आपका डाटा पिछला, अब हमें नहीं पता कि पहले हमने क्या स्टोर किया था। इफ यू वांट टू एक्सेस दैट डाटा अगेन आफ्टर इट, वी कांट। व्हाई? बिकॉज इट कैन ओनली प्रिंट द प्रीवियस डाटा और जस्ट रिसेंटली स्टोर्ड डाटा। तो ये ओवर रिटन का कॉन्सेप्ट है। आई होप यू गॉट इट शहीर।
सो दैट वाज द प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया कि हमने दोनों लूप्स को डिक्लेयर किया, दोनों एरेज को डिक्लेयर किया। वी जस्ट आइटरेट द लूप फॉर 5 टाइम्स। वी आर आस्किंग यूजर टू एंटर द स्टूडेंट नेम, नेम्स इनटू वन, फर्स्ट एड्रेस पे नेम्स आ गया। वी हैव टू स्टोर हिज मार्क्स, सो मार्क्स के फर्स्ट एड्रेस पे मार्क्स आ गए। सिमिलरली द लूप विल बी आइटरेटेड फॉर 5 डिफरेंट टाइम्स, एंड वो 5 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर नेम्स अलोंग विद द मार्क्स जो है वो स्टोर करेगा। जैसे आपके पास यहाँ डाटा स्टोर हुआ। अच्छा, अब हाँ, आप ये कहेंगे कि सर ये तो हम एरेज के बगैर भी कर रहे थे, तो अब क्या वहां पर बेशक डाटा ओवर रिटन हो रहा था, वो डाटा तो स्टोर कर रहा था, 5 स्टूडेंट के नेम्स भी और मार्क्स भी। अब उस सिनेरियो के अंदर एक प्रॉब्लम आता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं वो हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट करवा सकता हूँ। लेकिन उसमें ये होता था कि जो जो मार्क्स इनपुट होते जा रहे हैं साथ साथ मैं देखता था कि वो हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, लोएस्ट मार्क्स कौन से हैं। यहाँ पर ये है कि जब आपने एरेज में डाटा स्टोर किया है, सो हियर आई कैन सी कि हु इज दैट स्टूडेंट हु गॉट दोज हाईएस्ट मार्क्स, हु इज दैट स्टूडेंट हु गॉट लोएस्ट मार्क्स। तो इन दैट सिनेरियोज एरेज हमें वर्क करती नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल, if I'll run a code to see who got highest marks, so it will print the highest marks are scored by Shaheen, Mariam, and Rayan. So we have to run pseudocode for that. For example, if I want to see who was the student who got lowest marks, so my question with the help of arrays print that the lowest marks are secured by Aryan and marks are 10. So I can do those things there in these arrays. Previously that was the limitation, because वो एक वेरिएबल लेके हम डाटा ओवरराइट कर रहे होते थे। यहाँ डाटा ओवरराइट नहीं हो रहा, हर डाटा अपने अपने स्पेसिफिक चंक के अंदर जा रहा है और वहां पर जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी हम 1D एरेज कर रहे हैं, एंड स्टिल विल कंज्यूम 1 मोर डे ऑन इट। बिकॉज आपने अब कल का जो क्वेश्चन होगा, कल की जो क्लास होगी, व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो फॉर लूप के क्वेश्चन सारे पढ़े थे ना, वो देख कर आने हैं। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट्स विद एरेज यूज करने हैं। तो फॉर लूप के जितने भी क्वेश्चंस किए थे, यू जस्ट हैव टू रीड दोज आउट एंड देन यू हैव टू कम इन द क्लास। Is it clear, guys? Any problem? Any issues? I hope you got the concept of these arrays. इसको tricky consider किया जाता है in pseudo codes, but I hope आपको इसमें कोई चीज tricky नहीं लगी होगी. These are very simple things. ठीक है, an assignment will be shared with you. You just have to do that. You people have to be consistent while doing assignments, because if you people are only seeing my work on the screens, this thing is not enough. आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो फिर चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होंगी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।